طرف کافر تھے، اس طرف مسلمان تھے۔ پہاڑ کے دیکھیں آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ نظر آیا، پہاڑ کا نام ہے جبل سلا۔ پہاڑ کے اوپر کچھ تاریخی موچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جس کو چوکیاں بولتے ہیں۔ اب جو ہمارے لیے زیارات ہیں وہ ہے مسجد قبلہ تین۔ قبلہ عربی میں ایک کو کہتے ہیں، تین دو کو کہتے ہیں۔ دو قبلوں والی مسجد جہاں پر ہمارا قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ ہم پہلے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز ادا کر رہے تھے۔ کسی جگہ پر نماز عصر کا ذکر آتا ہے، کسی جگہ پر نماز ظہر کا ذکر آتا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لی تھی، 2 رکعت باقی تھی، اور دل میں خیال بھی کر رہے تھے یا اللہ ہمارا قبلہ الگ ہونا چاہیے، یا اللہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی نازل کی، فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ انور مبارک مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران نماز کے دوران اپنا چہرہ انور مبارک مسجد الحرام کی طرف پھیر لیے۔ جو پیچھے صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے بھی اپنے چہرے انور مبارک مسجد الحرام کی طرف پھیر لیے۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، میں نے اپنا چہرہ انور برق مسجد الحرام کی طرف پھیرا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے؟ صحابہ کرام کو عرض کرتے ہیں حضور ہمارا قبلہ بھی آپ ہیں، ہمارا خانہ کعبہ بھی آپ ہیں، جہاں آپ جائیں گے ہم آپ کے پیچھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی صاحبان، مسجد قبلتین میں ہم پہلے اتارتے تھے، نوافل ادا کراتے تھے، لیکن ابھی کچھ کام ہو رہا ہے، اس کا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ کچھ دن تک انشاءاللہ وہ اوپن ہو جائے گی، تو اس کی آپ کو بیعت سے زیارت کرائیں گے، اس کی آپ بیعت سے زیارت کر لیجیے گا مسجد قبلتین۔ اس کے بعد ایسے بار ہماری گاڑی جائے گی ایک کھجور باغ میں، احد باغ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ احد پہاڑ پر آؤ کچھ نہ کچھ چیز کھاؤ، اگر کچھ بھی نہ ملے تو کھجور کے پتے ہی کیوں نہ چبا لو۔ وہ کھجور باغ میں جائیں گے، ہم سنت کے مطابق ایک ایک کھجور کھائیں گے، منہ میٹھا کریں گے۔ 3 کھجور ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اجوا، عنبر، بنی مدینہ۔ اجوا اور عنبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناشتے مبارک میں پسند کرواتے تھے۔ بنی مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایک کھجور اپنے گھر میں رکھے گا اس کے گھر میں برکت آئے گی۔ تو وہاں پر جائیں گے، ایسا بات ایک باغ ہے، وہاں پر فرش کھجور بھی ملتی ہے، اگر کسی ایسے بان کو وہاں سے کھجور لینی ہے تو وہاں سے کھجور خرید بھی سکتے ہیں۔ اجوا، عنبر اور بنی مدینہ۔ اس کے بعد ایسے بان جو بھی ایسے بان یہاں پر آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، یہاں سے تحفے طوائف لے کر جاتے ہیں۔ آب زمزم، کھجور، ٹوپی، تسبیح اور بھی کچھ ایسے تحفے ہیں جو یہاں سے حج زبان لازمی لے کر جاتے ہیں۔ آب زمزم جو ہے وہ آپ کو ایئرپورٹ سے مل جائے گا، ایئرپورٹ پہ ملے گا۔ کھجور جو ہے آپ کو مارکیٹ سے، ابھی ہم جہاں کھجور باغ میں جا رہے ہیں وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ایسے مان 2 تحفے ہیں۔ ایک تحفہ ہے غزوہ بدر کا۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ 180 کلومیٹر ہے یہاں سے غزوہ بدر، 180 کلومیٹر ہے۔ وہاں کا ایک تحفہ ہے، وہاں پر ہے پہاڑ جبل ملائکہ۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں ملائکہ، فرشتوں کو کہتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رو رو کر، اور رو بھی رہے تھے اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے، اور کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یا اللہ صرف یہی 313 آدمی ہیں، اگر یہ چلے گئے تو پوری قیامت کا دن آپ کو کوئی اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ابھی اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد قبلتین۔ یہی وہ مسجد قبلتین ہے، اسی جگہ پر ہمارا قبلہ تبدیل ہوا تھا، نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہوا تھا، اس کے بعد ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوا تھا۔ یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، کام ہو رہا ہے، یہ بند ہے، یہاں پر کوئی بھی بسیں نہیں جا رہی، ساری بسیں ادھر روک کے دکھا کے پھر آگے نکل رہی ہیں۔ تو ہر زبان میں آپ کو بتا رہا تھا جبل ملائکہ پہاڑ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں ملائکہ، فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے تھے، اوپر آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے کہ یا اللہ اگر آپ نے بھی ہماری امداد نہ کی تو آپ کو تا قیامت خدا کہنے والا، اللہ کہنے والا کوئی نہیں بچے گا اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے نازل کیے،
जिस पहाड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे वो पहाड़ पहले पत्थर का था, जब फरिश्ते नाज़िल किए गए तो नरम हो गया, रेत का पहाड़ हो गया। अभी वो पहाड़ मौजूद है, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है जबल मलाइका पहाड़। अगर आप उसकी ज़ियारत करना चाहेंगे तो जब जंग बदर की ज़ियारत के लिए जाएंगे, उसमें एक और 2-3 ज़ियारत और भी है, उसके बारे में मैं आपको आखिर में बता दूंगा। जो भी ऐसा जाना चाहेंगे वो फिर मुझे बाद में बता देंगे। तो है समान वहाँ का तोहफा है कुदरती रोगन बिलिस्तान, कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ पर। जो पुराने हैसबान हैं उनको इसके बारे में पता होगा, जो नए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। कुदरती रोगन बिलिस्तान, जब सहाबा किराम जंग में ज़ख्मी हुए थे, जंग बदर के जब जंग बदर हुई थी तो सहाबा किराम जंग में ज़ख्मी हुए थे, तो ये जो दरख्त थे, ये जो टहनियाँ थी, ये खुद बोल पड़ी थी कि ए हुजूर हमें भी जंग में कोई हिस्सा दे, हम किस काम आएंगे, रोज़े क़यामत हमने कौन सा किसको कैसे काम आएंगे। तो वही जो दरख्त थे बोल पड़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं दरख्त के पत्तों को उतारा और सहाबा किराम के ज़ख्मों के ऊपर लगाया, तो सहाबा किराम के जो ज़ख्म थे वो ठीक हो गए। आज भी वो सऊदी लोग जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शफा देने वाली मेरी रब की ज़ात है, शफा देने वाली मेरी रब की ज़ात है। सिर्फ बात यकीन की होती है सवाल। जो अगर आपको यकीन है, यहाँ से हम मट्टी उठा रहे हैं, अगर आपको यकीन है कि अगर इस मट्टी में भी शफा लिखी हुई है तो आपको शफा मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी में शफा है, लेकिन सऊदी लोग और हाजी सबान जो है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सऊदी लोग इसको बे औलादी के लिए, कमज़ोरी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। गनम यहाँ पर बकरी को कहते हैं, बकरी के दूध में इस्तेमाल करना होता है सामान। बे औलादी के लिए, कमज़ोरी के लिए, अंदरूनी कोई बीमारी है, शुगर है, आपने दूध में इस्तेमाल करना है, बकरी के दूध में इस्तेमाल करना होता है। 1 गिलास बकरी का दूध लाना है, उसमें 2 से 3 कतरे डाल के रोज़ाना इशा के बाद सोते वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना है। अंदरूनी कोई बीमारी है आपने दूध में इस्तेमाल करना है। बैरूनी बीमारी के लिए जैतून के तेल को 1 चम्मच को गर्म करके उसमें 1 से 2 कतरा डाल के इसकी आपने मालिश करनी है। अगर कोई भी अभी भी कमज़ोर है तो 1 गिलास दूध लेने, उसमें 4 कतरे रोगन बिलिस्तान के डाल के आधा मियाँ ने पीना है, आधा बीवी ने पीना है। 21 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपने अल्लाह से दुआ करेंगे और आपको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा। उसके बाद हसमान मदीना शरीफ का एक और तोहफा है सुरमा अल इस्मत। सुरमा अल इस्मत, आप सर अभी अपने सीधे हाथ पर देखें, आपको बाग नजर आ रहा है, पीर उस्मान, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला का बाग मुबारक और पीर उस्मान का कुआं, ये भी बंद है। ये देखें जालियाँ लगी हुई हैं, सब बंद किया हुआ इन चीज़ों को, इन जगहों को बंद किया हुआ, इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। देख सकते हैं कोई भी आपको बंदा नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, सब जो बात होगी सच्ची बताऊँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ उतरने की इजाज़त है आपको उतार रहा हूँ। आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको मदीना शरीफ की मुकम्मल ज़ियारत कराऊँगा। ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी जो आपकी रह जाएगी। जो रास्ते में आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो आज समान सुरमा अल इस्मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुरमा पहनना सुन्नत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस्तेमाल करते थे, अपने नवासे हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तेमाल करवाते थे। आपने फरमाया सुरमा अल इस्मत बिनाई को तेज करता है, पलकों को गाड़ता है। तो है सबान सुरमा अल इस्मत आब ज़मज़म से मिक्स करके बनाया जाता है। तो है सबान अभी हम जंग ओहद के बाग में पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर उतरेंगे, 20 मिनट का टाइम होगा, 20 मिनट में आपने वापस आना है। उससे पहले समान तोहफे जो बताए हैं मैंने आपको, आबे ज़मज़म आपको एयरपोर्ट से मिलेगा, खजूर आप यहाँ से बाग से लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी, बाकी जो भी तोहफे हैं वो आपको मार्केट से मिल जाएंगे। तो है समान हम ये तोहफे बता देते थे तो कुछ है सामान पूछने लग जाते थे ये कहाँ से मिलेंगे, सुरमा कहाँ से मिलेगा, रोगन बिलिस्तान कहाँ से मिलेगा। किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ये बस में रख दें। ये गज़वा बदर में पाया जाता है, सऊदी है, वहाँ से हम उसको, सऊदी है वही, ये इनका अर्क, इनका तेल उन्हीं को इजाज़त है, वही निकालते हैं। फिर हमने सऊदी से रब्ता किया, वो यहाँ पर आता है, हमें दे जाता है। सुरमा अल इस्मत हमारे पास बस में मौजूद है इस सामान, और कुदरती रोगन बिलिस्तान भी मौजूद है। ये एक कुदरती तोहफा है और बहुत ही महंगा तोहफा है सामान। कुदरती रोगन बिलिस्तान जो पुराने सामान है उनको इसके बारे में पता होगा, तकरीबन इसका 300 से 400 रियाल का तोला है। ठीक है सामान, अगर आपको चाहिए तो 20 रियाल की 1 शीशी मिलेगी, 3 शीशियाँ, 21 दिन का जो कोर्स है आपको 50 रियाल की 3 शीशियाँ मिलेगी। सुरमा अल इस्मत 5 रियाल की 1 शीशी है। अगर किसी को चाहिए सामान, जब बाग से वापस आएंगे तो आप कोई भी सामान लेना चाहे तो वो मुझसे आकर वापसी में ले सकता है। ओहद पहाड़ के बारे में आता है, जबलुन ओहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। आपने फरमाया ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। 6 से 7 किलोमीटर ओहद पहाड़ लंबा है, 2 से 2.5 किलोमीटर चौड़ा है। जब इस ओहद पहाड़ को ऊपर हेलीकॉप्टर से कैमरे की निगाह से देखा गया तो ये सारा ओहद पहाड़ लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ नजर आता है।
जंग अहद, इस जंग में आपके चचा, आपके भाई, आपके दोस्त हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए थे, मुस्अब बिन उमैर शहीद हो गए थे। सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए थे। मुस्अब बिन उमैर, वो मुस्अब बिन उमैर जो मक्के से गलियों से गुजरते थे तो सारा दिन खुशबू रहती थी, 200 दिरहम का जोड़ा पहनते थे, जो एक मर्तबा पहन लेते थे फिर दोबारा उसको नहीं पहनते थे। जब उनकी कफन की बारी आई तो कफन भी नसीब ना हुआ। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला की बहन हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला के लिए 2 कफन मुबारक की चादर लाई थी। एक चादर छोटी थी, एक चादर बड़ी थी। आपने फरमाया एक चादर मेरे चचा को पहना दी जाए और एक चादर मेरे शहजादा मुस्अब बिन उमैर के रख दी जाए। जो बड़ी चादर थी वो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को पहना दी गई, जो छोटी चादर थी वो मुस्अब बिन उमैर के रख दी गई। जब मुस्अब बिन उमैर की बारी आई चादर पहनाने की, सर ढांपते थे तो पाँव नजर आता था, पाँव ढांपते थे तो सर नजर आता था। आपने फरमाया मुस्अब बिन उमैर का सर ढांप दे और पाँव के ऊपर खजूर के पत्ते रख दे। वो मुस्अब बिन उमैर जो मक्के की गलियों से रहते थे तो सारा दिन खुशबू रहती थी, 200 दिरहम का जोड़ा पहनते थे, जो एक मर्तबा पहन लेते थे फिर दोबारा उसको नहीं पहनते थे। जब उनकी कफन की बारी आई तो कफन भी नसीब ना हुआ, कफन भी मुकम्मल नसीब ना हुआ। एक सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला वो भी इसी जंग अहद में शहीद हो गए थे। वो सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला जिनकी शादी को सिर्फ एक रात हुई थी और जिनको गुस्ल फरिश्तों ने दिया था, जिनकी शादी को सिर्फ एक रात हुई थी। सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला की शादी को सिर्फ एक रात हुई थी तो रात को ऐलान होने लगा है कोई जो जहाद करना चाहता है। तो सैयदना हंज़ला उठ खड़े हुए तो वहाँ पर आए और जंग अहद में शहीद हो गए। जब उनका जो हज़रत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला आराम फरमा रहे थे पता चला कि वो गायब हो गए। जब गायब हो गए देखा तो पहाड़ी की चोटी के ऊपर उनका वो आराम फरमा रहे हैं। जब सहाबा किराम उनको लेकर आए अपने हाथों के ऊपर तो वो गीले थे, उनसे पानी टपक रहा था। तो मतलब है कि इनको गुस्ल जो था वो फरिश्तों ने दिया था। तो वहाँ पर भी हम जाएंगे आसमान जहाँ पर 70 सहाबा शहीद हुए थे, वहाँ पर आपने सलाम पेश करना है। एक पहाड़ी है जबले रुमात, वहाँ पर आप ने 50 तीरंदाज मुकर्रर किए थे। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि जब तक मैं ना कहूँ आपने नीचे नहीं उतरना, चाहे जंग फतह हो जाए या ना हो जाए आपने नीचे नहीं उतरना। तो सहाबा किराम जब नीचे उतर आए थे उनने सोचा कि जंग फतह होगी है। इन्हीं गलत फहमी की वजह से वो नीचे उतर आए और माल गनीमत इकट्ठा करने लग गए। तो पीछे जो काफिर छुपे हुए थे उन्होंने पीछे से वार किया तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए, मुस्अब बिन उमैर शहीद हो गए और सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला भी शहीद हो गए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी इसी जंग अहद में शहीद हुआ था। वहाँ पर जाएंगे आसमान, उससे पहले खजूर बाग में जाएंगे, वहाँ पर तबरुक के तौर पर एक एक खजूर खाएंगे सुन्नत के मुताबिक। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अहद पहाड़ पर आए तो कुछ न कुछ मीठी चीज़ खाएं, कुछ भी ना मिले तो खजूर के पत्ते ही क्यों ना चबा लें। वहाँ पर जाएंगे 10, 15, 20 मिनट का टाइम होगा, सामान 20 मिनट में आपने वापस आना है। तो उससे पहले मैंने 2 तोहफे बताया, कुदरती रोगन और सुरमा अल इस्मती हमारे पास थोड़ी मिकदार में है। अगर किसी को